कब? When? This next class. Next class में you will not come. I am pretty No. sure about it. Will come. हमारी कल है क्लास सुबह 9 बजे. आप Okay. जागे ही नहीं होते. Miss. नेक्स्ट टाइम मुझे याद चाहिए, ठीक है? Yes. ओके, Miss. आई फैसल मुझे याद करके इंशाल्लाह सुनाएंगे, ठीक है? Okay. Yes. ओके ओके. Any confusion from the last lecture, girls? Umama, Iman, Fatima, hope is it clear to you well? Yes. That's good. Fatima, any question from your side, bete? No, teacher. That's good. Okay, so we are going to start our today's lecture, which is on page number 88. All of you, if you have your books, you can please open it. And here we go with this page. All of you can see it on your screens, right? I don't know, my connection is not stable because I was taking previously 9th class, so there was lot of connectivity issues. So if my voice is not coming to anybody and I'm not replying it, it means there is something bad with my connection. You can tell me in the chat box. Fatima, Umama and Iman, I am saying it to you. आप तीनों से मैं कह रही हूँ जैसे ही मेरी Okay, आवाज teacher. कट जाए या कुछ. Thank you. So here is the page 88. And we have started our third topic, which is about salts. ठीक है? Salts की हम last time बात कर रहे थे कि salts क्या होते हैं. And before going on salts, I have told you that there is a very famous reaction which is used again and again when we are going to study acid, bases, and salts. Can you name anyone? Which I have told you many times when studying acid, when we were studying salt, and I have told that this is really very important one. Yes, Faisal, give me the answer, bete. Miss neutralization. Yes, Faisal. Oh my God, who told you? Jaldi se sure about? Yes, miss. That's very good. अगर आपको पता, good, शाबाश. टीचर मैं कह रही हूँ उसमें बताऊं क्या होते हैं? हाँ जी, चले आप बता दें क्या होता है फातिमा. टीचर एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं. Yeah. And सॉल्ट बनाते हैं और साथ में एक और चीज भी लिबरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर. या इट्स वाटर. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड पहले लिख देते हैं और जब बेस की बात करते हैं तो हम बेस पहले लिख देते हैं. बट द मेजर थिंग के तीनों में क्या चीज कॉमन है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर द थ्री इंग्रेडिएंट्स जो कि हम इस रिएक्शन में डालते हैं एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट. सो हर कैटेगरी में वी हैव टू डिस्कस इट. तो अब हम फॉर्मूला, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए करती हूँ बिकॉज व्हेन यू कम इन केमिस्ट्री क्लास इन 9th, आपको कुछ नहीं आता होता. बिलीव यू मी, यू पीपल don't know even the ABC of chemistry, that how we are going to write down the equation, how we are going to read the equation. So I expect from all of you कि मैंने आप लोगों को जिस तरीके से 8th क्लास में पढ़ाया है 9th क्लास में ये ब्लेंडर्स ना हो, because these are the very basics of chemistry. जब आप इनको सीख लोगे then really it is difficult, not difficult for all of you कि आप आगे इसको केमिस्ट्री को लेकर चलो, आपको चीजें समझ आती जाएंगी इंशाल्लाह. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को बार बार अंडरस्टैंड करें. So here is that properties of salt we are going to discuss. हमने acids की भी discuss की, bases की भी discuss की. Now we are with properties of salt. Number 1 is salts exist in solid states. कभी भी liquid state में नहीं होते. हम इनको बनाते हैं liquid state में, change करते हैं, like aqueous solution बना देते हैं, उसका पानी में हम dissolve कर देते हैं, then they are, लेकिन original जो है salts, they are present in solid states. And they are almost found in crystalline or in powder form. Crystalline form वो होती है जिसमें छोटी छोटी सी needles, crystals बनी हुई नजर आती हैं. Like अगर आप नमक को देखें अपने घर में तो it is crystalline form sometimes it is powdered form. So they have these two kinds of
existence and they have high melting and boiling point. Salts जो हैं like sodium chloride की अगर मैं बात करूं तो इसका जो melting point है जिस पे जाकर इसने melt करना है it is 801 degree centigrade. That is very very high. तो इनके जो boiling points और melting points होते हैं क्योंकि इनका structure giant होता है, इनके अंदर solid state में होते हैं, तो इन्होंने आपस में अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया होता है. उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो अंदर की फोर्सेस होती हैं जो उसको बाइंड की होती हैं that are quite strong. So it's really very difficult to break them, to melt them. That's why they have higher melting and boiling points, right? Then there is number 2, generally salts are soluble in water because जैसे मैं aqueous solution है and aqueous solution जो है वो solution होता है which is made up in water. So salts जो हैं वो soluble होते हैं water में most of the times, not necessary कि हर salt जो है वो soluble होगा. There are examples like सबसे पहली example आप दे सकते हो अगर soluble की बात करें हम sodium chloride जो कि easily dissociate हो जाता है, sodium hydroxide भी हो जाता है, but कुछ salts ऐसे हैं that are insoluble in water. अब उनके name है calcium carbonate. Calcium carbonate कहते हैं marble को, पत्थर को. If you take a little piece of marble and you just start dissolving it in water, it will never ever going to be dissolved till the moment आप इसको acid में dissolve करो फिर ये dissolve होगा, लेकिन पानी के अंदर ये कभी भी अपना solution नहीं बनाएगा. Then there is lead chloride. lead की example आप इस तरह से लिख सकते हो, आपका जो pencil का lead है ना, सिक्का, that is made up of graphite or lead. If you try to dissolve it in water, it is also not having any effect on water. And cadmium sulfate. Cadmium is also a metal, it is not soluble. तो ये उनके names हैं. These are insoluble in water. Then third property of salt is aqueous solution. Bete, raise your hand if you want to ask question. Who is saying? Who is asking the question? Please raise your hand. Don't interrupt. This is not the way, bete. Abdul Rahman, अपना mic बंद रखिए, please. उमैमा, मेरा बच्चा बस 1 minute wait करें. Let me finish it. Then lecture रह जाता है. Please write down whatever you want to ask. एक paper पे लिख लो. At the end, last 10 minutes, I am going to take the questions. Aqueous solutions, salts are or their melted forms, molten forms conduct electricity. कि ये जब aqueous solution में होते हैं, they have a very very important property कि इनमें से electricity pass out हो सकती है. और आगे केमिस्ट्री में फर्दर फिजिक्स में आप ऐसे सेल्स पढ़ोगे जिनके अंदर हमने अगर सोडियम क्लोराइड को इस तरह से एड अप किया हुआ है तो इट हैज अ टेंडेंसी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाता है व्हेन वी कनेक्ट बैटरी विद इट. ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड का हमने सोल्यूशन बनाया और इसमें से करंट पास आउट होना लग पड़ेगा. नो, इट डजंट हैपन. यू हैव टू कनेक्ट सम सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. Now, number 4, many of the salts contain water molecules. Now, this is a very important point. बार-बार इस चीज का 9th 10th में emphasize किया हुआ है. Many of the salts contain water molecules in their crystals, which are responsible for the shape of the crystals. Like, अब मैंने कल आपको पढ़ाया था, आप अपने पेज को टर्न करके पीछे भी देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट एक जगह पे लिखा हुआ है CuSO4. इसका क्या कलर है, मुझे कौन बताएगा? फातिमा. Tell me the color of copper sulfate. You can see it on the page, previous page. What is the color of copper sulfate? What are you saying, teacher? बेटे मैं पूछ रही हूँ कि कॉपर सल्फेट का क्या कलर है बुक में. ईमान आप बताएं बेटे. यस ईमान. Teacher, blue. Yeah, it's of blue color. It's just blue because of water molecules are present in it. क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है. इसके साथ उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप डॉट डाल के 5H2O लिख दोगे तो it means there are 5 water molecules are present over there. But अगर वो 5 water molecules को हम extract out कर दें, let's say we start heating that copper sulfate, तो वो पानी जो है स्टीम बनकर उड़ जाएगा और जो कलर है हमारे पास सॉल्ट का that is going to be definitely changed और वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और कलर हमारे पास व्हाइट हो जाएगा. तो जब तक जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो डिटरमिन करते हैं शेप ऑफ क्रिस्टल. व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप. लाइक अगर 5 मोल कह रहे हैं उसमें कलर भी जो है हमारे पास ब्लू कलर का है, बट इफ वी इवेपोरेट इट यानी हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें से पानी जो है वो सारा उड़ जाएगा एंड द कलर इज गोइंग टू बी व्हाइट एंड पाउडर्ड फॉर्म. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस पानी आप ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो वो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना क्रिस्टल में, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन फॉर द पर्पस ऑफ योर लर्निंग. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो योर आंसर मस्ट बी 5. ठीक है, यू कैन राइट डाउन इन द ब्रैकेट दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इस पॉइंट को हम.
Then number 5 carbonates and bicarbonates. Carbonate O3 minus 2 ion होता है, ठीक है. Then एक मिनट बच्चों. कार्बोनेट्स होते हैं CO3 minus 2 होता है. बाई फॉर्मूला 8 CO3 negative 1. ठीक है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता लगेगा. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. When they react with acids, they liberate carbon dioxide gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. नाउ इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई एम हाईलाइटिंग इट. ये अगर हम देखें सोडियम कार्बोनेट CO3 जहां पे है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट. व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद HCl तो क्या बन रहा है हमारे पास? सॉल्ट तो बन ही रहा है, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कर रहा है. मतलब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स they liberate dash gas, so you must be aware of the gas liberate हो रही है, carbon dioxide gas is over there. Then next point is that when salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxide are formed in the reaction mixture. यानी जो heavy metals होती हैं like sodium, ferric and इस तरह से जो जितनी भी metals हैं, एक group है पूरा heavy metals का ना पीरियोडिक टेबल में. तो जब ये रिएक्ट करती हैं अल्कलीज के साथ तो क्या होता है? दे प्रेसिपिटेट्स ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, उनके प्रेसिपिटेट्स आते हैं डिफरेंट कलर्स के, जिनको आप कलर की वजह से भी पहचान सकते हैं. दीज आर इनसॉल्युबल. ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपके बीकर के नीचे जो है एट द बॉटम दे आर कलेक्टेड. सो हियर इज द इक्वेशन FeCl3 जिसको हम फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं. ये यूजुअली ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, जो कि कलर देता है आगे फर्दर. और साथ में 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के बनते हैं. ठीक है. देन नंबर 7, the chemical reaction of water with the salt produces an acid and a base and the reaction is called hydrolysis. एक तो रिएक्शन हमने पढ़ा ना न्यूट्रलाइजेशन, अब एक और रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस जिसमें पानी जो है वो ब्रेक डाउन होता है और फर्दर आगे रिएक्ट करता है. तो आप देखें सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉरी एक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा और बेस भी प्रोड्यूस करेगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. ठीक है. सो Na2CO3 along with 2 water molecules give us NaOH and H2C. देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है एंड कार्बोनिक एसिड जो है वो H2CO3 है. एसिड भी प्रोड्यूस हो गया और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? बेस भी प्रोड्यूस हो गई. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड wait a minute, let me ask from Umema first. ये Yes मैं कह Umema. रही हूँ आप कि पेंसिल का जो लेड होता है हमारा, हाँ जी वो जी. पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो अगर हम चीजों से कर लें क्रश कर लें तब भी नहीं होगा, करके देखना. उसको छोटे छोटे बारीक पीसेस कर देना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. जी कि बेटा. जो हमारी सॉल्ट माइन, हमारा जो सॉल्ट माइन है ठीक है, उसमें NaCl वाला होता है सॉल्ट. हमारी जो ये क्योरा साइड मान की बात कर रहे हो आप? यस. Yes, it is very rich in sodium chloride and there are so many other salts as well. तभी तो पाकिस्तान में नमक की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है. ओके. ठीक है. And मैं कह रहा हूँ वाटर ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है?
और दूसरा क्या पूछना है, स्पेलिंग बता दें, और Yes, सेकंड Miss spelling. क्वेश्चन क्या है, और वाटर ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है? वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है। Yes. वाटर जो है देखें H2O है वाटर का फॉर्मूला, Yes. ऐसे Yes. H2O. बेटे ब्रेक डाउन होती है, जब ये आपके सामने रखा है हम ये रिएक्शंस होते हैं। बता रही हूँ फैसल, लिसन टू मी। फर्स्ट क्वेश्चन Yes, इज miss. स्पेलिंग्स आर H Y D. ये कौन है? अब्दुलरहमान, बाल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बन गए हैं। फातिमा, फातिमा, व्हाट्स योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी नाउ। टीचर ये जो आपने माइक बंद करें। जी जी फातिमा बोलें। टीचर आपने जो एंड में बोला था उमैमा के क्वेश्चन से पहले वो रिपीट कर दें, वो मुझे समझ नहीं आई थी आपकी बात। कौन सा वाला, मुझे पॉइंट बता दो, आई डिडंट रिमेंबर कि मैंने। अच्छा ये लास्ट वाला पॉइंट कह रहे हो, हाइड्रोलिसिस। यस। अच्छा, मैं हाइड्रोलिसिस बेटे वो रिएक्शंस हैं जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और क्या होता है वाटर के साथ जब आप किसी भी सॉल्ट को रिएक्ट कर रहे हैं या सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हो, तो साथ में एक एसिड बनती है और एक बेस बनता है एज अ रिएक्शन प्रोडक्ट। जैसे न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू ऐड एसिड एंड बेस एंड देन व्हाट इज द रिजल्ट, सॉल्ट। ऐसे ही है, सॉल्ट प्लस वाटर। बट Yes. हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि वाटर को हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, राइट। इट कैन बी इन ऑन बोथ साइड्स, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ना, दैट विल बी एसिड एंड बेस। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इज एसिड एंड बेस बोथ, ये ना सिर्फ एसिड बन रहा हो, बोथ फॉर्म्स। एक कार्बोनेट और मिनट बेटे, बात तो बाइकार्बोनेट। पूरी कर लेना दो। मुझे These टीचर आपकी kind of आवाज सही reactions नहीं are, आ रही। जी जी पूछिए। There is some problem again with the connection, एक दफा कनेक्शन जा भी चुका है मेरा। हाँ जी पूछें अब क्वेश्चन आप। जी जी टीचर कार्बोनेट Yes, और फातिमा। बाइकार्बोनेट बेसिस और वो बेसिस और एसिड्स होते हैं। नहीं, जब जो कार्बोनेट्स है ना सॉल्ट्स के साथ, जैसे Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दीज आर नॉट एसिड्स, दीज आर बेसिस। और बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम। ओके। ये ऐसा चीज आपको आगे क्लियर होगी, दे आर नॉट एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एसिड नहीं बनाए, उसकी डिसोसिएशन होकर कुछ और बनेगा। सो ओवर हेयर यू कैन सी सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक सॉल्ट है बेसिकली। जहां सोडियम आ गया तो ये अल्कली है, मैटर वो है, बेस है, इट्स नॉट एसिड। उसके साथ वाटर को जब हम रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो दो मोल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, विच इज अ बेस, वेरी गुड बेस। And along with carbonic acid का फॉर्मूला है H2CO3। It is an acid but it is very weak acid। जो strong acid है ना, जैसे HCl, H2O4, HNO3, ये उनकी लाइन में उनकी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। It falls in very weak acids। But मेन पर्पस यहाँ पे जो है पॉइंट टू पॉन्डर आपका ये है कि that whenever acid and base is forming as a result of reaction with carbonates, we get hydrolysis। और वाटर के साथ ये रिएक्शन होता है, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। क्लियर है फातिमा? यस फैसल, हरी अब जल्दी से पूछें क्या पूछना है अब। मिस मैंने आपको ये कहना था कि आपकी आवाज नहीं सही आ रही। चलो अब आ गई ना। यस। चलें अब लास्ट टॉपिक जो आज का है उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, इट्स 24 minutes already। So here it is on your books page number 88, uses of salts। Let me share it with you as well क्योंकि फैसल के पास बुक नहीं है। It is over here, यहाँ से
जी सबसे पहले आप यूजेस को हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, व्हेनेवर हमें पसीना आता है, सारी की सारी जो ये प्रेस्पिरेशन होती है, उसके अलावा व्हेन वी स्टार्ट क्राइंग, हैव एनीबॉडी हैव टेस्टेड देयर ओन टीयर्स? किसी ने अपने आंसू को भी टेस्ट किए हैं? रोते रोते मुंह में हो जाते हैं, मैंने निकल जाते सुना है हैं। नमकीन होते हैं। यू नेवर टेस्टेड इट? नहीं टीचर, अब इतना तो नहीं याद। चलो एक थप्पड़ खाओ मां से और देन स्टार्ट टेस्टिंग इट। ठीक है टीचर, अब करूंगी ट्राई। Yes, Iman, do you have any idea what is the taste of your tears? Yes, teacher, नमकीन ही होता है. Iman, Yes. have you ever tasted it? Real में? Yes. Oh my God, very good, शाबाश. Yes. What about you? नमकीन होते हैं. नमकीन होते हैं. हाँ जी, the taste of tears, the taste of tears is नमकीन just because of salt. हमारी बॉडी में बहुत से सॉल्ट होते हैं, उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. If a person is getting dehydration, क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी में सारे के सारे मिनरल्स सॉल्ट्स का जो बैलेंस है दैट इज गेटिंग आउट. लाइक डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जिनको ड्रिप लगाएं. ड्रिप में क्या होता है, सारे के सारे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, उसमें कैल्शियम होता है, मीन सारे के सारे आयंस होते हैं, मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नेसेसरी है. सिमिलरली जब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, डॉक्टर्स एंड योर पेरेंट्स एंड एल्डर वंस, योर पेरेंट्स स्पेशली गाइड करते हैं कि गिव हिम एज मच वाटर एज दे कैन, या स्कंजी बना के दें, लीमू उसमें डालें. तो क्या ये आपके सारे के सारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर रहा होता है कि आपका जो सोडियम लेवल नीचे चला गया, पोटेशियम लेवल नीचे चला गया है, वो ठीक हो जाता है. लाइक लेट्स से जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं सुबह से it's over here, you can see sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. हमारे nervous system के लिए ये दोनों salts potassium और sodium होना बहुत important है. अब देखें ये नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि सॉल्ट्स इन सोसाइटी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. नंबर 1 आप देख सकते हो सिल्वर सॉल्ट्स हैं जो कि फोटोग्राफी में यूज होती हैं, यानी ये जो सिल्वर फिल्म्स वगैरह होती हैं पुराने दौर में होती थी, अब तो नहीं इस तरह से होती हैं, उसमें यूज होता है. देन देयर आर सोडियम नाइट्राइट, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सिट्रेट. ये फूड प्रिजर्वेटिव में जो फूड कैंड फूड होती है ना उसमें यूज होते हैं. देन वी हैव डिफरेंट केमिकल्स इन इंडस्ट्री जिसमें सोडियम क्लोराइड है, फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरीके से. देन फूड फ्लेवरिंग के लिए सोडियम क्लोराइड आपको पता है टेस्ट के लिए यूज किया जाता है. एंड एज वेल इट इज यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस. प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी जोड़ने के लिए जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है. अगेन इसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, CaSO4.2H2O. Salts of calcium are present in bones. They are responsible for the strength of bones. These salts are responsible for preventing attacks. Plaster of Paris का देखें formula is used for broken limbs. देख लें जो आपका कहने थे जी उर्दू में कहते हैं इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गए. हाँ बताएं जल्दी से. बॉडी पार्ट्स हैं? नहीं मैं कह रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस. लिम्स नहीं, मैं कह रही हूँ इसको क्या कहते हैं. ये देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखें एक बंदे ने अपने बाजू पे पट्टी चढ़ाई हुई है, ये देखें इस पे. क्या आवाज क्लियर तो नहीं आ रही? ये जब किसी की टांग टूट जाए. अच्छा अब्दुल रहमान, तो जो है ना इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ दिया, प्लास्टर कर दिया. यस वो उर्दू में लफ्ज है कि इसने प्लास्टर बांधा हुआ है, इसको प्लास्टर किया हुआ है. तो वो ये जो सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, इसको यूज किया जाता है फॉर ब्रोकन लिम्स, जोड़ जो टूट जाते हैं हमारी हड्डियों के उनके लिए. देन पोटाश एलम, फटकरी जिसको हम बोलते हैं, इज यूज्ड टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड. यानी जब आपको कोई चोट लग जाती है उसके ऊपर आप फटकरी लगाते हैं तो ये फौरन से हीलिंग पावर शुरू हो जाती है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. पोटाश एलम, ये जो लिखा हुआ है POTASH, ये पोटाश एलम है, इसको कर रही हूँ सर्कल, इसको फटकरी भी बोलते हैं, ठीक है. Then there is another one, salts of iodine. Iodine के salt आपको पता है नमक जो होता है, आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, मिला नमक इसमें
ग्लैंड से कि आपकी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको खुदा ना खास्तान वो जो है गॉइटर की तरफ सिचुएशन चली जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर सॉल्ट एक starting the class tomorrow inshallah our class is at 9 o'clock। मैं दोबारा बता रही हूँ, पिछली दफा हमारी 9 बजे क्लास नहीं हुई थी, but tomorrow inshallah we have our class right at 9 o'clock, so all of you please be present in the class। only Fatima, Iman and Umaima क्लास में होती हैं और कोई भी नहीं होता, so please be there। पहले मैं टेबल आप लोगों से लिखवाऊंगी, then we will move on the next lesson। yes Fatima, जो उर्दू में जिसको हम लाम है उड़े की डिजीज, इट इज अ डिजीज, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर गूगल। ठहरे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठहरो। goiter, if I can, goiter is a disease name and let me, जो गर्दन बहुत ज्यादा स्वेलो कर जाती है किसी की, उसमें सारे के सारे जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं दैट आर गेटिंग वेरी मच डिस्टर्ब। डायग्राम, या इट इज हियर। दिखा रही हूँ आपको मैं। टीचर आप रहने दो, मुझे समझ आ गई है। नहीं मैं कर चुकी हूँ, अब देख लो आप लोग। आई हैव डाउनलोड, होप यू ऑल कैन सी। ये देखें, ये गर्दन स्वेलो हुई है ना कितनी ज्यादा, अजीब सी मोटी मोटी सी हुई होती है। ये देखें नीचे भी 2 तरह की आपको नजर आ रही हैं। सो इट इज वेरी बैड थिंग, खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए उसकी सारी थायराइड प्रोफाइल खराब हो जाती है। हमारे बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वीमेन जो हैं उनको ये डिजीज होती है, सो हमें सो दैट हम इसे दूर रहें, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन बेटे? Who wants to ask? Iman, what is your question बेटा? टीचर आपने आज नहीं सुनना था हमसे टेबल? बेटे वो मुझे पता, मैं जब क्लास स्टार्ट किया आई हैव आस्क्ड, यू वाजंट देयर, तो फैसल से मैं एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड द क्लास। इंशाल्लाह कल मैं उस टेबल का टेस्ट लूंगी। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई विल गिव यू सम नेम्स एंड यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन, ठीक है। टीचर हम ये दोनों याद करें, नेम्स और फॉर्मूलाज? NaCl, ओके ठीक है। चलें, टिल देन अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ। टीचर